بلوچستان کے بعد پنجاب میں بھی کونگو الرٹ، وائرس کے ممکنہ پھیلاؤ کا خطرہ، مویشی پالنے یا لانے کے لیے ویکسینیشن لازم قرار، محکمہ لائف سٹاک نے کمر کس لی، ڈائریکٹر ڈاکٹر حیدر علی خان نے وافر مقدار میں ادویات کی دستیابی کی یقین دہانی کرا دی۔ بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں بابر منیر۔ بابر بتائیے گا۔ بالکل جی، ڈائریکٹر لائف سٹاک فیصل آباد ڈویژن ڈاکٹر حیدر علی خان نے چنوٹ کا وزٹ کیا ہے اور ایک تو لائف سٹاک کی جانب سے جو ماہانہ پروگرس تھی اس کا جائزہ لیا۔ اسی طرح بلوچستان میں بیشتر کیسز جو ہے وہ کانگو وائرس کے سامنے آ گئے ہیں۔ اس کے بعد پنجاب میں جو کیا صورتحال رہے گی اور اس کے ساتھ ساتھ تیاریوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اس سلسلے میں ڈائریکٹر لائف سٹاک ڈاکٹر حیدر علی خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم سے بات کرتے ہیں۔ ہم اس کے لیے بالکل تیاری پہ ہے۔ اس کا جو ابھی مین فوکل پوائنٹ ہے وہ کوئٹہ ہے، بلوچستان ہے۔ تو ہم نے جتنے بھی ہمارے انٹر پروونشل جو بارڈر ہیں ان کے اوپر ہم نے پکٹس لگا دی ہوئی ہیں، اور ان پکٹس کے اوپر کوئی بھی جانور پنجاب میں انٹر نہیں ہوگا جب تک اس کو ٹک فری اپنے ہم سپرے نہیں کریں گے یا ٹک کا ویکسین نہیں کریں گے۔ اس کے لیے ہم نے جو ہمارے پاس تمام ہاسپٹل ہیں پورے فیصل آباد ڈویژن میں بھی، ان کے پاس بھی ہم نے ایکریسائڈل جو میڈیسن ہے جو ٹک کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ وافر مقدار میں ہم نے خرید لی ہوئی ہے اور تمام ہاسپٹلز میں موجود ہے۔ تو ہم اس کے لیے پہلے سے تیار ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا بھی یا پھر کوئی انسیڈنس ہوگا تو ہمارے پاس بالکل موجود ہے۔ ہم ایک ایک گھر میں ایک ایک جانور کو جو ہے ٹک کے جس کے اوپر بھی ٹکس ہوں گے وہ اس کے ہم سپرے کریں گے۔ خدا نہ خاصہ ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو مویشی پال حضرات کو کیا مشورہ دیں گے کہ وہ کون سی احتیاطی تدابیر اختیار کریں؟ نہیں، اس کے لیے کوئی ایسا پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک خاص قسم کی ٹک ہے جس کی وجہ سے یہ پھیلتا ہے۔ ابھی تک تو یہ پاکستان میں یا پنجاب میں یہ رپورٹ نہیں ہے کہ کوئی ایسی ٹک جو ہے اپنے پنجاب میں موجود ہے جس کے اندر یہ وائرس موجود ہوتا ہے۔ محکمہ ہر جانور کی ویکسینیشن کرے گا۔ شکریہ بابر آپ کا۔ علاج گاہوں میں بجلی، پنکھے، واش رومز، بیڈز اور ڈیلیوری ٹیبل فعال رکھنے کی ہدایت جاری۔ سی او ہیلتھ فیصل آباد ڈاکٹر اسفندیار کی زیر صدارت انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ تفصیلات جان لیتے ہیں عزادار حسین سے۔ جی عزادار بتائیے گا۔ سی او ہیلتھ فیصل آباد ڈاکٹر اسفندیار کی زیر نگرانی ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کے آفس میں ماہ اکتوبر کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا، جس میں ضلع بھر کے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتالوں کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ، ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ افسران اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ افسران جو ہے وہ شریک ہوئے۔ ہمارے ساتھ سی او ہیلتھ فیصل آباد موجود ہیں۔ جی سر بتائیں کیا کہیں گے، کیسی کارکردگی رہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری محترم علی جان خان صاحب کی ہدایت کے مطابق آج ہم نے پوسٹ سی او کانفرنس جو ہے وہ یہاں پہ کی ہے، کیونکہ 4 نومبر کو سیکرٹری صاحب نے تمام سی اوز کے ساتھ میٹنگ کی تھی۔ اس میں انہوں نے کوئی 33 ایجنڈا پوائنٹس پہلے سے ہمیں آئیڈینٹیفائی کر کے دیے ہوئے ہیں جن پہ ہم نے کام کرنا ہے، تمام اضلاع کے سی اوز نے اور ان کی ٹیم نے۔ جس میں مینلی جو چیزیں ہیں وہ تو یہی ہیں کہ جو پیشنٹس کی کمفرٹ کیئر کے حوالے سے ہیں کہ اس کے اندر تمام بیڈز فنکشن ہوں، یو پی ایس جنریٹرز چل رہے ہوں، پنکھے لائٹیں چل رہی ہوں، بینچز جو وہاں ہیں وہ ہوں، واٹر کولرز مہیا کیے جائیں، اسی طرح ڈیلیوری ٹیبلز جو ہیں وہ سارے ٹھیک ہونے چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے عملے کی پریزنس یعنی حاضری کو انشور کریں، بایو میٹرک مشینوں فنکشن ہوں، اور جو اتنے بھی مریض ہمارے آ رہے ہیں جو ہیلتھ فیسلٹی پہ انرول ہوتے ہیں ان کو تمام تر فیسلٹیز سے وہ جو ہے وہ پرووائڈ کی جائیں، یعنی انرولمنٹ کے بعد وہ ڈاکٹرز کا چیک اپ کروائیں، ان کے وائٹلز دیے جائیں، ان کو دوائی دی جائے اور اس کی ای ایم آر پہ یعنی الیکٹرانک میڈیکل رپورٹنگ اس کی جائے۔ اس طرح ڈیلیوری کے جو ٹارگیٹس تھے وہ ڈسٹرکٹس میں ہونے چاہیے اچیو، وہ الحمدللہ ہمارے آر ایس سیز پہ 100% ہم نے اچیو کیے ہیں، اور جو ہم بی ایچ یوز کے اوپر وہ ہم کو 95% کے اوپر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی جو ہمارے آر ایس سیز ہیں 16، ان میں سے 3 جو ہمارے آر ایس سیز ہیں جس میں ستیانہ، مامو کانجن اور ڈچکوٹ، ان کو اپ گریڈ کیا گیا ہے۔ وہاں پہ کنسلٹنٹس کی تعیناتی بھی جلد عمل میں لائی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی ہماری ہیلتھ فیسلٹیز ہیں چاہے وہ ٹی ایچ کیوز ہیں اور بی ایچ یوز بھی نئے فیز 8 کے بھی 24/7 ہوئے ہیں، تو ان پہ انشاءاللہ ورکنگ کرنے جا رہے ہیں۔ ورکنگ کرنے جا رہے ہیں۔ عزادار اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ کمر توڑ مہنگائی، اس پر فیسکو نے بھی صارفین پر بجلیاں گرا دی۔ شہر کا 35 دن کی ریڈنگ پر بل بھیجنے کا الزام، ایک ساتھ کی سہولت ختم کر کے من مرضی ریڈنگ پر بل بھیجنے کا شکوہ کر دیا۔ مہنگائی بڑھ گئی ہے، اس پر بھی فیسکو صارفین پر بجلیاں گرا دی گئی ہیں۔ شہریوں کا 35 دن کی ریڈنگ پر بل بھیجنے کا الزام، ایک ساتھ کی سہولیات ختم کر کے من مرضی کے بل بھیجے جانے کا شکوہ۔
इस हवाले से बात करेंगे ओवैस अली से। ओवैस, बताइएगा। इलाकों में 35 दिन की रीडिंग के जो बिजली के बिल हैं वो मुबैना तौर पर भेज दिए गए हैं। बिजली के बिल देखकर शहरी जो हैं वो परेशान हो गए हैं। शहरी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मैं इस वक्त सलाम नगर के इलाका में मौजूद हूं, उनसे जानते हुए इस वाले से उनका क्या कहना है। अच्छा सर, 35 दिन की रीडिंग के बिजली के बिल भेजे गए हैं, क्या कहेंगे इस वाले से? सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये कहना चाहूँगा कि गरीब आदमी की 2 वक्त का जो खाना है ना वो बड़ा मुश्किल हो चुका है। ऊपर से ये इस दफा जो इन्होंने 35 दिन की रीडिंग करके जो आवाम को बिल भेज दिए हैं, इनको पूछने वाला कौन है? कोई जिम्मेदार है इस चीज़ का? अगर रीडिंग मैन से पूछते हैं कि भाई ये आप 35 दिन के बाद आप रीडिंग लेने आए तो जी हसान हो तो ऑर्डर नहीं, ये किसके ऑर्डर है? वो बंदा तो सामने आए ना। हुकूमत में कोई ऐसा बंदा है जो इनसे पूछ ले, या गरीब आदमी के लिए कोई सदे बाब किया जाए। गरीब आदमी की 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं हो रही। जिस बंदे की 25,000 रुपया सैलरी, वो 40,000 रुपया बिल कैसे पे करेगा? मैं खुद 39,843 रुपए बिल आया है मुझे, 39,843 रुपए बिल कहे तो मैं आपको दिखा भी सकता हूं। मगर ये कौन है पूछने वाला? हमें सैलरियां जो है जी वो 32,000 रुपए पेपर वर्क में तो शो कर दी गई है कि हम बंदों को 32,000 रुपए मजदूर की कम से कम सैलरी होगी, मगर जो अदारे हैं वो 25,000, 20,000, 18,000 इससे ऊपर जाता ही कोई नहीं है। ये बिल कहां से पे करें? तो हमारी यही हुकूमत से अपील है कि इनसे पूछा जाए, जो इनके ऊपर हकामे बाला बैठे हैं बावडा के, कि ये किससे पूछ के ये सारे मामला तो हो रहे हैं। 35 दिन की रीडिंग लेने का क्या मकसद है? जी बिल्कुल, 35 दिन की रीडिंग जो है वो क्यों ले गई? शहरी जो हैं वो गुस्से का इजहार कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ और शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अच्छा, 35 दिन की रीडिंग का बिल भेजा गया, आपको क्या कहने वाले से? मैं कोई नहीं, मैं 41 चैनल की तरफ से और कौम बाला तक ये खबर पहुंचाना चाहता हूं कि पहले ही हमारे पास जो 30 दिन की रीडिंग उसके बिल नहीं दिए जा रहे थे, कि हम कहां से दें? हम बच्चों को पढ़ाएंगे, इनके बिल अदा करें, क्या करें? जब आधे काम से पूछते हैं कि ये बिल आपने कैसे भेजे, ऊपर से वो कौन सा ऊपर वाला ऑर्डर देना, उसका भी नाम बता दो हमें, ताकि हम इनसे इस्तजाल कर सकें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि शहरों का यही कहना है कि पहले ही बिजली के बिलों से परेशान थे, ऊपर से जो है वो 35 दिन की रीडिंग करके बिलों में जो है वो बेजा इजाफा किया गया है। हमारे साथ कुछ और शहरी मौजूद है। अच्छा, बिजली के बिल जो है वो आपको 35 दिन की रीडिंग से भेजे गए हैं, क्या कहेंगे इस वाले से? जी बिल्कुल, इस दफ़ा 35 दिन की ही रीडिंग की गई। पहले तो 30 दिन की रीडिंग के हिसाब से बिल आता था, वो देना बहुत मुश्किल था। इस दफ़ा तो इन्होंने 35 दिन के हिसाब से बिल भेजा। अब हम क्या कर सकते हैं? इन्होंने तो आवाम के ऊपर एक और बम गिरा दिया है। जी बिल्कुल, आवाम के ऊपर जो है वो बम गिरा दिया है। शहरी जो है वो मुतालबा कर रहे हैं कि वजारत तवानाई पावर डिवीजन जो है उसका नोटिस ले और फेस्को की जानिब से शहर भर के बेशतर इलाकों में 35 दिन की रीडिंग के बिल भेजे गए हैं। 35 दिन की रीडिंग जवाब कौन देगा? शहरी सरापा एहतजाज। वैसे उनके साथ मौजूद हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया वैसे आपका। फैसलाबाद की तहसीलों में फूड गोदामों की तामीर और मुरम्मत इल्तिवाक का शिकार। 4 तहसीलों में 15 करोड़ रुपए की लागत से गोदामों की तामीर और मुरम्मत होना थी। बात कर लेते हैं इमरान असलम से, हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद तहसील के मुख्तलिफ गंदम के गोदामों के तामीराती काम इल्तवा का शिकार हैं। बिल्डिंग काम की जानब से महकमा ज़राअत फैसलाबाद को इससे कबल भी तकमीना लागत अरसाल किया गया था। 15 करोड़ के करीब फैसलाबाद की मुख्तलिफ तहसीलों में गोदामों की रिहेबिलिटेशन के काम जो है वो बिल्डिंग काम की जानब से अंजाम दिए जाने थे, जिसमें जो है वो तांदरे वाला, समुद्री, जड़ा वाला, इसी तरह जो है वो फैसलाबाद की मुख्तलिफ मामू कांजन और दीगर तहसीलों में जो है गोदाम के मुरम्मती काम जो है सर अंजाम देने थे, लेकिन ताहाल फंड्स ना होने की वजह से तमाम तर जो काम इल्तवा का शिकार है। बात करें मामू कांजन में तो 3 करोड़ 21 लाख की लागत से ये काम मुकम्मल होना था। इसी तरह जिलावाला जोग दिता जो गोदाम है वहाँ पर 1 करोड़ से ज़्यादा की लागत से काम मुकम्मल होना था। इसी तरह जो है वो दीगर समुद्री में जो 72 लाख की लागत से जो गोदाम की रिहेबिलिटेशन का काम है वो सर अंजाम होना था। इसी तरह बचियाना जड़ावाला रोड में 1 करोड़ 23 लाख की लागत से महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद की जानब से काम सर अंजाम हुआ था, लेकिन ताहाल फंड्स ना होने की वजह से तमाम तर गोदामों की रिहेबिलिटेशन के काम जो है वो सुस्त रवि का शिकार हैं और इल्तवा का शिकार हैं। बिल्डिंग काम की जानब से तमाम तर तखमीने लागत भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोल दिए गए थे। जी इमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता रहे हैं 4 तहसीलों में फूड गोदामों की तामीर और मुरम्मत इल्तवा का शिकार। 15 करोड़ की लागत थी। गोदामों की तामीर और मुरम्मत होना थी। चक झुमरा 1 करोड़, मामू कांजन में 3 करोड़ 12 लाख लागत आना थी। तांदिया वाला 1 करोड़ 86 लाख, कंजवानी 1 करोड़ 47 लाख, समुद्री गोदाम पर 72 लाख रुपए की लागत आना थी। इस हवाले से इमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
आपको बताएं, फैसलाबाद में विमेन पुलिस इन एक्शन। खवातीन को हिरासत करने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुल्जिमान रमजान और मुदस्सिर ने चक 197 रेबे की खवातीन को हिरासत किया। मना करने पर मारपीट भी की। मुतासरा खातून ने मुल्जिमान के खिलाफ थाना विमेन में मुकदमा दर्ज करवा लिया। SHO मदीहा इरशाद ने मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मजीद कार्रवाई शुरू कर दी गई है। फैसलाबाद में विमेन पुलिस इन एक्शन। खातून को हिरासत करने वाले 2 मुल्जिम गिरफ्तार कर लिए। रुपए के मुकाबले कम होती डॉलर की कदर फिर बढ़ने लगी। डॉलर 278 रुपए से बढ़कर 286 रुपए पर पहुंच गया। तफसीलात जान लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज। डॉलर के हवाले से बात करें तो इस वक्त दोबारा से डॉलर जो है उसकी उड़ान नजर आ रही है और डॉलर जो हम देख रहे हैं कि 278 पर आया और 278 से दोबारा से 286 पर जा चुका है। सीनियर नायब सदर फैसलाबाद ऐवान सनअत व तिजारत डॉक्टर सज्जाद अरशद हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं कि क्या फोरकास्ट कर रहे हैं। एक्चुअली जो अनसर्टेनिटी है ये क्रिएट नहीं होनी चाहिए। ये बेसिक फिनोमेना ये है। IMF का अभी पैकेज हो रहा है, वो उनकी टीम भी आई हुई है, डिस्कशन भी हो रही है। इट इज़ ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इसमें हुज्जत नहीं है। लेकिन जो मार्केट फोर्सेस हैं वो ऐसा सिस्टम क्रिएट हो जाता है पाकिस्तान में बदकिस्मती से कि वो लोगों की अनसर्टेनिटी बन जाती है और जो ही अनसर्टेनिटी बनती है साथ ही चीज़ें चेंज होनी शुरू हो जाती हैं। और ये थोड़े दिनों में जो ही ये चीज़ें सेटल होती हैं ये दोबारा ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह और ये इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। आपको लगता है कि डॉलर में इतना ज़्यादा रद्दोबदल होने की वजह से एक कारोबारी हजरात जो है वो सरमायाकारी से रुक जाते हैं, वो इंतज़ार करते हैं कि सिचुएशन स्टेबल हो उसके बाद पैसा निकाला जाए? इसको जो डॉलर और चीज़ों की जो सर्टेनिटी है ना, इसमें बेसिक रोल जो आपका है पॉलिटिकल सिस्टम भी है। आपका जब पॉलिटिकल सिस्टम बड़ा ही स्टेबल चलेगा तो फिर उसमें बड़ी आसानियाँ हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया शराज अपडेट करने के लिए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की टैक्स गुजारों के लिए बड़ी सहूलत। टैक्स ऑडिट और असेसमेंट केसेस में शहरी ऑनलाइन हियरिंग का हिस्सा बन सकते हैं। तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर बताइएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से टैक्स गुजारों की सहूलत के लिए बड़ा इकदाम उठाया गया है और इस हवाले से टैक्स ऑडिट केसेस और टैक्स असेसमेंट केसेस में अब मुतलका टैक्स गुजारों को FBR दफातर के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे और ना ही उन्हें अफसरान के रूबरू पेश होना पड़ेगा, बल्कि इसके लिए FBR की जानिब से ये सहूलत मुतारिफ करवाई गई है कि टैक्स गुजार अपने घर या दफ्तर में बैठे ही अपना जो ऑनलाइन उनका पोर्टल FBR की जानिब से बनाया गया है उस पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन हेयरिंग का हिस्सा बन सकते हैं और वहाँ पर अपने मुतलका जो तहकीकाती ऑफिसर है या मुतलका FBR का अफसर है उसको अपने जवाबात जमा करवा सकते हैं और अपना मौक़िफ़ जो है वो दे सकते हैं। इस हवाले से FBR की जानिब से सालाना बुनियादों पर हज़ारों टैक्स गुजारों को ऑडिट के लिए मुंतखब किया जाता है और इसी तरह टैक्स गुजारों के टैक्सेस की असेसमेंट भी की जाती है। तो इसके लिए शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ता था कि वो FBR दफातर के चक्कर लगाते रहते थे मुतलका ऑडिटर्स के पास। उमैर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। जंग में चिनाब पार्क की बहाली के लिए 2 करोड़ रुपए का PC1 तैयार। पार्क की बहाली में 4 दीवारी, लैंडस्केपिंग और लाइटिंग समेत दीगर अंसर शामिल हैं। आपको बता रहे हैं जंग में चिनाब पार्क की बहाली के लिए 2 करोड़ रुपए का PC1 तैयार। बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान। जी बिल्कुल, लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से जो झंग का चिनाब पार्क है इसकी रिहेबिलिटेशन भी जो है वो होगी। इस सिलसिले में ज़िला कौंसिल की जानिब से 1 करोड़ 95 लाख रुपए से ज़ायद लागत का एक PC1 जो है वो बनाया गया है और दीगर अखराजात भी इसमें जो है वो शामिल किए जा रहे हैं जिससे जो चिनाब पार्क है इसमें बेहतरी हो सकेगी। अली आपको मेरे कम में दिखा भी सकते हैं कि पार्क की इस वक्त सूरत हाल जो है वो खासी अजीब है। सब्ज़ा दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। इसके अंदर मिनी ज़ू भी शामिल है। उसकी सफाई और जो घास की कटाई है समेत दीगर बहुत सारे काम जो हैं वो होने वाले हैं। इस मंसूबे के तहत इस में ना सिर्फ लैंडस्केपिंग हो सकेगी, लाइटिंग समेत दीगर अहम काम भी जो हैं वो हो सकेंगे। हमारे साथ इस वक्त टेक्नोलॉजी कॉलेज के स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, उससे बात भी करते हैं। अच्छा बताइएगा, क्या समझते हैं कितना ज़रूरी है इस पार्क की बेहतरी करना? ये ऐसी बात है जी, इसमें बहुत सफाई का बहुत ख्याल करना चाहिए। यहाँ पे बहुत गंद है और दीवारें वगैरह टूटी हुई हैं,
हमें बहुत बस हमारी ब्रेक टाइम होती है तो हम इधर आ जाते हैं, और सफाई का खास ख्याल रखें बस, और थोड़ा सा हुकूमत को कहीं काम वगैरह करा दें। बेटा आप बताएं, क्या कहना चाहेंगे, ज़रूरी है कि यहाँ पे सफाई हो, पौधे लगें, घास लगे? जी हाँ, यहाँ पर सफाई का कोई ज़्यादा खास ख्याल नहीं रखा जाता, और चिनाब की दीवार भी पीछे से टूटी है जो जिससे इस पार्क बिल्कुल इसमें सिक्योरिटी भी जो है वो दाव पे लगी होती बहुत है। शुक्रिया रमजान अपडेट करने के लिए। हेलमेट का इस्तेमाल सांस के मरीजों के लिए नुकसानदेह नहीं, फायदेमंद है। सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद के मेडिकल ऑफिसर ने शहरियों को बड़ा पैगाम दे दिया। तफसीलात जान लेते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के शहरियों की जानब से हेलमेट इस्तेमाल ना करने के मुख्तलिफ मेडिकल जवाब पेश किए जाते हैं। बाद शहरियों की जानब से ये जवाब पेश किया जाता है कि वो सांस की तकलीफ में मुब्तला है, जिसकी वजह से हेलमेट पहनकर उनको घुटन का सामना करना पड़ता है। इसी तरह जो दिल की बीमारियों में मुब्तला शहरी हैं वो भी मेडिकल जवाब बनाकर हेलमेट के इस्तेमाल से गुरेज कर रहे हैं। क्या फैसला जो शहरी हैं बीमारी में मुब्तला होकर हेलमेट इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे सिटी ट्रैफिक पुलिस के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद जमील से। वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा कि शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का बहाना बनाते हैं कि ये इस बीमारी में हेलमेट इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनके लिए नुकसानदेह है, मेडिकली क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो तो ये बात है कि जो शहरी ये कहते हैं कि हम सांस की बीमारी में मुब्तला हैं और हेलमेट इस्तेमाल नहीं कर सकते, अगर हेलमेट इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वजह से, क्योंकि उसके ऊपर स्क्रीन लगी होती है, बाहर स्मोक बहुत ज़्यादा है, हेलमेट की वजह से वो सांस की बीमारी और ये जो स्मोक है उससे बचेंगे। उनकी आँखें भी और उनके जो है ना ये जो सांस है, फेफड़े हैं, उनमें जो है ना डायरेक्ट जो है वो ये जो पोल्यूटेड एयर है नहीं जाएगी। इसलिए किसी भी स्टडी में ऐसा कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि आप जो ना हेलमेट पहनते हैं तो उससे आपका सांस खराब होता है। तैयब अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब के अहकामात और डिविजनल कमिश्नर की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख की महकमा हेल्थ की टीमों के हमरा डेंगू सर्विलेंस के लिए खुद मैदान में आ गए। वकास बेग हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट कीजिएगा। अच्छा बिल्कुल, कातिल मच्छर से शहरियों को बचाने के लिए महकमा हेल्थ के साथ साथ डिप्टी कमिश्नर खुद भी मैदान में आ गए हैं। न सिर्फ मुख्तलिफ इलाकों में डेंगू के हवाले से इंडोर आउटडोर सर्विलेंस की मॉनिटरिंग की जा रही है, बल्कि डिप्टी कमिश्नर की जानिब से खुद भी शहरियों को डेंगू से बचे रहने और एहतियाती तदाबीर के हवाले से आगाही दी है। हमारे साथ भी मौजूद होंगे, इनसे पूछेंगे क्या समझते हैं कि इस कातिल मच्छर से बचना किस तरह से मुमकिन हो सकेगा। जी लोग थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं क्योंकि मौसम ठंडा हो जाता है, लेकिन ये ज़्यादा क्रिटिकल टाइम है और उसमें मैं आपके तवज्जो से लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि इसमें ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। वो इसलिए क्योंकि बाहर जब मौसम बेहतर होता है तो मच्छर अंदर की तरफ जाता है और उस वजह से जो है ना फिर जो लार्वा प्रोडक्शन है वो भी मतलब उसमें अवेलेबल होती है। तो उसमें ये है कि हमारे पास यहाँ पे ज़िले के अंदर 450 के करीब पेशेंट्स पूरे सीज़न के अंदर अभी रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक किसी की इससे जो है वो डेथ नहीं हो सकी। लेकिन उसकी वजह यह है कि यहाँ पे बेहतर सर्वेलेंस रही है। इस साल हमने सबसे ज़्यादा लार्वा पिछले 3-4 सालों को मिला के उससे ज़्यादा लार्वा डिटेक्ट किया है, जिसका मतलब ये है कि ऐसी जगहों को हमने ख़त्म किया है जहाँ पे लार्वा की ब्रीडिंग हो रही थी। और अभी भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे अभी भी लार्वा मिल रहा है। जिस यूसी के अंदर हम खड़े हैं यहाँ 165 जगहों से लार्वा मिल चुका है इसमें। तो इसमें लोग डीसी अब्दुल्ला नैयर शेख डेंगू सर्विलेंस के लिए मैदान में आ गए। वकास हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं जंग में डेप्यूटी डायरेक्टर ज़राअत साजिद महमूद कासिम के ज़ेर सदारत असिस्टेंट डायरेक्टर का इजलास इस हवाले से बात करेंगे। अवैस खान से अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, जंग में डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन साजिद महमूद कासिम की ज़ेर सदारत तमाम तर असिस्टेंट डायरेक्टर्स के इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें जो है मौजूदा तौर पर स्मोक की सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए इस पर काबू पाने के हवाले से इकदाम का जायज़ा भी लिया गया, जबकि खसूसी तौर पर गंदम की पैदावार को बेहतर बनाने के हवाले से इकदाम का भी जायज़ा लिया गया। स्मोक भी हमारे लिए एक आफत बन चुका है और इसको कंट्रोल करना हम सबकी जिम्मेदारी है। हमें अपने बच्चों को भी सेहतमंद ज़िंदगी देनी है, अपनी फसलों को भी सेहतमंद रखना है और पौधों को भी सेहतमंद रखना है ताकि हम तमाम जो है सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। तो इसके लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है एनवायरनमेंट के साथ मिलकर एक एक्ट जो है वो इस दफ़ा गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, जिसके तहत जो भी आग लगाएगा, स्टबल बर्निंग करेगा, उसको फ़ी एकड़ के हिसाब से 15,000 फ़ाइन या इसके अलावा और भी सज़ाएँ हो सकती हैं। और इस वक्त तक मेरे डिपार्टमेंट ने, मेरे जो सबॉर्डिनेट हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं, जो भी
इंसिडेंस होता है स्टबल बर्निंग का, उस पर फौरी कार्रवाई की जाती है उनकी तरफ से, और इस वक्त तक हम तकरीबन 2.25 लाख जो है वो फ़ाइन कर चुके हैं फार्मर को स्टबल बर्निंग पे। और इसी तरह अभी बहुत शुक्रिया वैस अपडेट करने के लिए। गंदम की पैदावार में इजाफे के लिए टोबा टेक्सिंग इंतजामिया मुतहरिक, महकमा ज़राअत को 45 मन फी एकड़ पैदावार का हदफ दे दिया। तफसीलात जानते हैं मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की हदायत पर गंदम की पैदावार में इजाफे के लिए मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। ज़राई यूनिवर्सिटी सब कैंपस के तलबा भी इस मुहिम में हिस्सा लेंगे। करीबन 3600 के करीब तलबा जो है वो घर घर जाकर काश्तकारों को इस हवाले से आगाही भी फराहम करेंगे। बच्चों की ज़रूरत क्यों पेश आई है, बच्चे किस हद तक जो है वो इस मुहिम के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। पूरे पंजाब में गंदम उगाओ मुहिम की आगाही के लिए हमने तमाम बच्चों को गाँव-गाँव घर-घर निकाला है, ताकि वो इस पैगाम को जो हमारे वाइस चांसलर साहब ने दिया है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें और गंदम की पैदावार को बढ़ाएं, ताकि हम अपनी गंदम की पैदावार जो हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है उसकी बजाय हम इसने काबिल हो जाएं कि हम एक्सपोर्ट करें। तो इस सिलसिले में आज इस मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है और हमारे 3600 से ज़ायद तलबा इस वक्त गांव-गांव गली-गली में जा रहे हैं और फार्मर से इंटरेक्शन कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि उन्होंने कितना बीज डालना है, कौन सी खाद डालनी है, कितने पानी लगाने हैं और इस तरह के कौन सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अपनाकर गंदम की फ़ी एकड़ पैदावार को बढ़ाना है। पिछले साल हमारी जो पैदावार है उसमें कोई 16% इजाफा हुआ था। पिछले साल भी ये मुहिम चली और उसी के तसलसल के तौर पे इस साल भी इस मुहिम को जारी रखा गया है और गवर्नमेंट ने हमें 10 मन फ़ी एकड़ इजाफे का टारगेट दिया है, जो कि हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो पूरा हो जाए। स्टूडेंट्स एक्चुअली ब्यूरो चीफ मुबशर हसन नकवी हमारे साथ मौजूद है, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब गंदम की पैदावार में इजाफे के लिए आगाही हफ्ता वार सेमिनार, इस हवाले से बात करेंगे। कुमैल हैदर से अपडेट कीजिएगा। आपको अपडेट करें, महकमा स्पेशल एजुकेशन फैसलाबाद के ज़ेर एहतमाम सईद अजमल अकेडमी में स्पोर्ट्स गाला, इस हवाले से बात करेंगे। अली रजा से अपडेट कीजिएगा। स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़रिए एहतमाम आज सईद अजमल अकेडमी में स्पेशल बच्चों के लिए स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया, जिसमें डिवीज़न बढ़ के जितने भी स्पेशल स्कूल थे वहाँ से बच्चों को मदऊ किया गया और उन्होंने अपने बेहतरीन जो है तरीके से जो है वो जौहर दिखाए। मिस्टर CEO एजुकेशन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर क्या कहेंगे, बहुत अच्छी कावश है कि ऐसी एक्टिविटी इन बच्चों के लिए भी मखसूस की गई और आज का दिन रखा गया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। डिवीज़नल स्पोर्ट्स गाला 2023 का ये एक अच्छा इनेकाद है और मैं ये समझता हूँ जिस तरह से हमारे नॉर्मल बच्चों को ये फैसिलिटी मिलती है, मौका मिलता है, इसी तरह इन बच्चों को भी मौका मिलना चाहिए और माशाल्लाह बच्चों ने जो परफॉर्म किया है और मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए बड़ी ऑनर है कि आज मैं उनके सामने यहाँ पर बैठा हूँ और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे ये बच्चे, हमारे जो टीचर्स, हमारे जो स्कूल्स इस लेवल पर भी काम कर रहे हैं। मैं इनको सलूट करता हूँ। तारिक साहब मौजूद है। सर हमेशा स्पोर्ट्स को देखते हैं, आज इन बच्चों की स्पोर्ट्स देख रहे हैं, क्या फ़र्क देख रहे हैं? कुछ लग रहा है कि ये बच्चे में मज़ीद कुछ टैलेंट है, ये मज़ीद आगे भी पाकिस्तान में खेल सकते हैं? देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। मैं पंजाब के मुख्तलिफ डिवीज़न में सब घूम फिर के आया हूँ, तो उसमें जो मैंने स्पेशल बच्चों के स्पोर्ट्स गाले देखे हैं, हमने खुद करवाए हैं, तो इसमें कोई शक नहीं। हमारे कुछ बच्चे, ये स्पेशल बच्चे ऐसे हैं जो हमारे नॉर्मल बच्चों से भी बहुत आगे हैं। अभी ये वर्ल्ड में वो मेडल लेके आए हैं, एशियन में मेडल लेके, चाइना हमारे बच्चे गए थे, वहाँ से ये मेडल लेके आए और उन्होंने हमारा सर फख्र से बुलंद किया, पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया है। और ये पांचों कैटेगरीज के अली रजा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।